And today I have changed the system. Now I will be running the PPT so that you can understand the things better. Friends, today topic is very interesting. We are going to discuss Vivad Se Vishwas scheme, and now it is an act. It is an act passed by the parliament. Vivad Se Vishwas is an act now. It is not a scheme. It is not an ordinance now. Please understand there is a difference. Ordinance is something which the government brings as an ordinance, and once the act is passed, it becomes the act. Now the government has kept all the powers with it to extend the dates. Now, every time they have not to go to parliament to extend the dates, sir. Okay, so starting with a brief of the Vivad Se Vishwas scheme. What is Vivad Se Vishwas scheme? On 5th February 2020, when the budget was presented on 1st February, the Honorable Finance Minister of India has proposed that we will bring a scheme to settle the outstanding disputes. विवाद जो खड़े हुए हैं उनको हम सेटल करने के लिए we will bring a scheme and for the one time settlement of all the pending disputes. This was promised by the Honorable Finance Minister of India in the budget speech. And on 5th February 2020, they brought a bill in the parliament, and that was called as Vivad Se Vishwas Bill 2020, and that got the assent of the president on 17th of the March 2020. It got notified, and now it is a Vivad Se Vishwas Act 2020. Friends, you might be knowing that income tax department is the biggest litigant in India. सबसे बड़ा litigant अगर कोई है तो वो आयकर विभाग ही है. More than 5 lakhs cases are pending. It is the data of 2019, and almost 10 lakh crore, 10 लाख करोड़ रुपए का almost revenue गवर्नमेंट का स्टकअप था मुकदमों में. यू नो द कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़. हमने 13 लाख करोड़ की हमने प्रोजेक्शंस किया था लास्ट ईयर, बट ड्यू टू कोविड वी कुड नॉट अचीव दैट. और जब मोदी सरकार आई थी इन 2014, द टैक्स कलेक्शन वाज ऑलमोस्ट 6.5 लाख करोड़. It grows like anything about 18% annually and reached 11.38 crore for the year 18-19. Then we make a projection of 13 lakh crore for 2020, but we could not achieve that. तो almost 10-11 लाख करोड़ की हमें इनकम टैक्स की कलेक्शन भारत सरकार को आती है, यानी पूरे साल की कलेक्शन का इनकम टैक्स विवाद में फंसा हुआ था. The government proposed, this is very critical, this is very sacrosanct thing, which can go, who are eligible to go to the Vivad Se Vishwas scheme. The important thing is it's given in the name of the act itself, Vivad Se Vishwas, meaning thereby that first of all there has to be a Vivad. If there is no Vivad, there cannot be a Vishwas. Please understand. And Vivad means a pending litigation. If there is a pending litigation as on 31st January 2020, only then you are eligible to go to the Vivad Se Vishwas scheme 2020. This is the basic law. विवाद आपका होना जरूरी है. लोगों ने सवाल ये पूछा कि सर ठीक है, विवाद अगर मान लीजिए हमारा, जैसे आप ITAT के पास में आपको जाने के लिए 60 डेज होते हैं, CIT अपील पे जाने के लिए 30 डेज होते हैं. मान लीजिए कोई भी ऑर्डर जनवरी में पास हुआ और हमारी डेट पेंडिंग थी 31 जनवरी को, मतलब वी कुड फाइल द रिटर्न, वी कुड फाइल द विवाद, वी कुड फाइल द लिटिगेशन विद द अथॉरिटी और विद द ITAT और विद CIT अपील. Then whether these cases will be covered, then Sarkar says yes, okay. The understand both kinds of cases. Either there is a pending litigation as on 31st January 2020, or due date for filing the litigation has not expired on 31st January 2020. Only those litigation are eligible for Vivad Se Vishwas Act number 1. This is very, very important. Friends, as you know, in yesterday program, when I was giving the overview of the Income Tax Act, I said there are four kinds of appellate authorities are there. Of course, the first appellate authority is CIT appeal, Commissioner Income Tax Appeal.
And then the higher authority, the second authority, that is Income Tax Appellate Tribunal, ITAT. And you know, ITAT is a fact-finding agency. Third form, after the ITAT, the third form is High Court. Then you can go to the High Court. But friends, in High Court and Supreme Court, you can go only for the question of law. If there is a question of law, then you can go to the higher authorities of High Court and Supreme Court. Otherwise, you cannot go. Meaning thereby that, what I want to say, either the case should be pending before the CIT appeal, or before the ITAT, or before the High Court, or before the Supreme Court. Only then you are eligible for Vivad se Vishwas Act. Now, in this scheme, what the government has said, किस तरह का विश्वास, what विश्वास, what kind of विश्वास you are showing to us. तो सरकार ने कहा था, if the case is pending, देखिए, whenever there is an assessment, let me briefly then go back in the yesterday program. As I said, after the computation of total income, मैंने बड़ा स्ट्रेस दिया था टोटल इनकम के ऊपर, आपको ध्यान देगा yesterday program. After the computation of total income, now the procedure of assessment starts with the section 139. 139 is the basic section where you have to file the return of income. 139(1) mandates every (140A), that is self-assessment tax. You pay self-assessment. You every assessee, the government gives you a facility that you assess yourself, you pay advance tax, you pay self-assessment tax, and we will accept it. Then comes the scrutiny assessment, that is regular assessment, 143(2). What happens if the government thinks, if the income tax officer thinks that something has been concealed or some information is there or some, they take the case for the scrutiny. In normal language, we say it 143(2) is technically a regular assessment. Normal भाषा में हम कहते हैं स्क्रूटनी में केस आपका आ गया है. तो 143(2) is a scrutiny assessment, and the time period for giving the notice for scrutiny assessment is 6 months from the end of the assessment year. Meaning thereby that for the assessment year 1920, when the assessment year ends, 30th September 20, he can give the notice for the assessment year 1920. But due to COVID, the government has extended the date of giving notice up to 31st March 2021 this year. Otherwise, up to 6 months, he can give the notice for the regular assessment. And within 24 months, the assessing officer has to complete the assessment. Another kind of assessment is that is called income escaping assessment under section 147, 148. You know, हम सब कहते हैं कि कितने साल तक नोटिस आता है. एक आम भाषा में पूछते हैं कि for how many years a assessee has to keep the books of accounts. आपको कितने साल तक बुक्स रखना है. बहुत पूछते हैं ना कि बिजनेस में कितने साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना चाहिए, कब तक आपका रिकॉर्ड रखना चाहिए. तो फ्रेंड्स, नो टाइम लिमिट हैज बीन गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट फॉर मेंटेनिंग एंड कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बट indirectly in section 147, what the government has said, if there is an escapement of income and assessing officer feels the income, he has reason to believe the income has escaped assessment, then he can give you a notice of reassessment, either reassessment or first time assessment also, and the time period is 6 years from the end of the assessment years. Meaning thereby, for financial year 2012-13, 12-13 फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी असेसमेंट ईयर हुआ 13-14, उसके लिए आपको नोटिस कब तक आ सकता है, 31 मार्च 20 तक. और फाइनेंशियल ईयर 13-14 के लिए, असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए आपको नोटिस आ सकता है 31 मार्च 2021 तक. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 7 साल की बुक्स, फॉर 7 years ऑफ बुक्स प्रीवियस अकाउंट्स यू हैव टू मेंटेन. 7 साल का रिकॉर्ड आपको रखना जरूरी है. बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि हम 7 साल से जो पहले रिकॉर्ड को नष्ट कर दें, मिटा दें, डिस्ट्रॉय कर दें. टू माय ओपिनियन सर, it should not be destroyed because this time limit is for income tax act, but for benami property, for PMLA, no time limit has been prescribed. No time limit has been prescribed. कई बार मोदी जी कहते हैं ना कि
1947 तक का हिसाब दे लूंगा, जिसने भी गया है सबको देख लूंगा। तो सर दीज टू एक्ट्स, 1988 एक्ट, स्टिल देयर इज अ डिबेट whether the Benami, whether the inquiry can be made prior to 1988 or not. To my mind, at least up to 1988, under the provision of Benami Transaction Act, inquiry can be made or not be given. There are different views. Some says that you cannot go beyond 2016, but as per my view, there is no time limit under the prohibition of Benami Transaction Act. So coming back to the point, first I told you. एक थोड़ा सा ना बार बार आपकी वॉइस ब्रेक। फर्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट द रेगुलर ब्रेक हो रही है, तो थोड़ा सा एक तो स्लो हो जाइए और थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, तो एक तो रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा स्लो हो जाए। और ब्रेक हो रही है, पता नहीं वो बार बार चैट में देखिए, चैट में लिखा आ रहा है, मेरे पास भी थोड़ी कभी बीच में आने में मैं थोड़ा स्पीड से नहीं, थोड़ा स्लो बोलता हूँ, है ना? हाँ, थोड़ा सा स्लो बोलिए और या ब्रेक भी हो रही है, तो बस ये बताना था। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई टोल्ड यू that first is the regular assessment under section 143(2), then comes the income escaping assessment under section 147, DDV section 148, 149, and then comes the search assessment under section 153A, 153C. You know, under section 132, when I was reading yesterday the powers of the assessing officer, power of the income tax authorities, under section 132 the income tax authority has the power of search, जिसको हम कहते हैं रेड। इनकम टैक्स की रेड जब हो जाती है तो पावर ऑफ सर्च में 6 इयर्स की ब्लॉक असेसमेंट होती है, दैट इज अंडर सेक्शन 153A एंड 153C। सॉरी, इस सबको बताने का पर्पज क्या है? इसको बताने का पर्पज ये है सर कि जब आपको असेसमेंट होती है या रीअसेसमेंट होती है, देन what you have given in the self assessment, what you have given in your income tax return, there might be additions. आपको additions हो सकती हैं, कुछ डिसअलाउंसेस हो सकते हैं, आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज टैक्स लगा सकती हैं। तो जब वो टैक्स लगाती है, then एक नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 156 is raised. But my point is, whenever additional demand of tax is being raised, then you are liable to pay the tax, additional tax, number one. Number two, you have to pay the interest under section 234B to 234C or 234A. For what the reason, I will give the detail. Then you are also liable to be levied the penalties. तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है, आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है, और आपको टैक्स भी लग सकता है। टैक्स तो लगेगा ही लगेगा अगर आप एडिशन से, मान लीजिए आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 20 लाख रुपए की फाइल की और इनकम टैक्स ऑफिसर ने उस असेसमेंट को बढ़ाकर 50 लाख कर दिया, 30 लाख रुपए की एडिशन कर दी, चाहे तो उसने 153 में किया हो या 147 में किया हो या 143(2) में किया हो, तो 30 लाख रुपए की एडिशन पर आपको टैक्स देना होगा, जो भी आपका स्लैब है, मान लो 30%। उसके अलावा आपको इंटरेस्ट देना होगा, उसके अलावा आपको पेनल्टी भी लेविड हो सकती है। तो मैंने ये बात इसलिए बताई कि विवाद से विश्वास में जाने का पर्पज क्या है, और आपको प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है 276 में। तो सरकार ने हमसे कहा कि इस स्कीम का फायदा क्या है। सरकार ने कहा जी आप 100% जो टैक्स लायबिलिटी है खाली वो जमा करवा दीजिए, केवल यू पे डिस्प्यूटेड टैक्स। I will come to the definition of disputed tax, disputed fees, disputed penalty. But before that, I will make you understand what you mean by fee, what you mean by penalty. अगर मैं ये नहीं पता पेनल्टी क्या होती है, फीस क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, तो मैं विवाद से विश्वास स्कीम भी समझ नहीं आएगी। कहने का मतलब कि आपको सरकार ने कहा कि आप 100% डिस्प्यूटेड अमाउंट जमा करवा दीजिए केवल टैक्स का। तो आपने क्या बचाया? आपने सबसे पहले ब्याज बचा लिया, जो भी आपको इंटरेस्ट लगना था। मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 2009-10 का असेसमेंट ईयर चल रहा था, वो पेंडिंग था आईटीएटी के सामने, तो आपने उस पीरियड का पूरा इंटरेस्ट आपको जो लगता है वो बचा लिया। उसके अलावा आपको जो पेनल्टी लग सकती थी, और पेनल्टी अमाउंट जनरली
in earlier years it was 100 to 300% under section 271C, 300% तक की पेनल्टी जब लगा करती थी। और अभी प्रेजेंटली 270A कैपिटल ए जो सेक्शन आया उसके बदले उसमें पेनल्टी 50% टू 200% है। तो आपको ब्याज नहीं देना, आपको पेनल्टी नहीं देनी और आपको प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च नहीं होगा। तो आपने टैक्स दिया, बाकी चीजों को बचा लिया, लेकिन आपको डिस्प्यूटेड टैक्स 100% जमा करवाना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ऐसी कोई अपील है जिसमें आपके फेवर में पहले फैसला आ चुका है हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से किसी अर्लियर असेसमेंट ईयर में, या एक ऐसी अपील है जहां पर आप जीत गए, आप सीआईटी अपील में जीत गए और डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट चला गया है, यानी डिपार्टमेंट अपील में गया हुआ है। मैंने कहा जी मैं तो जीता हूं, डिपार्टमेंट मेरे अगेंस्ट गया हुआ है। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे आगे भी, ठीक है आप लड़ते रहिए, और आपको लगता है नहीं यार मैं हो सकता है कल को हार भी जाऊं तो मुझे फिर पेनल्टी भी देनी होगी, ब्याज भी देना होगा, तो सरकार ने कहा इस स्कीम में आप 50% जमा करवा दीजिए, यानी टैक्स का 50%। अगर आप खाली टैक्स का 50% जमा करवा देंगे तो हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पेनल्टी लेंगे, लेकिन 50% किस केस में है, जब आप जीते हुए हैं। मान लीजिए सीआईपी में जीत गए और डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट चला गया, आप आईटीटी में जीत गए और डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में चला गया है, तो आपको 50%, या अर्लियर असेसमेंट ईयर में सेम मैटर के ऊपर हाई कोर्ट ने आपके फेवर में फैसला दे रखा है और दूसरा असेसमेंट ईयर में आप फिर अपील में गए हुए हैं, तो इस केस में आप 50% जमा करवा दीजिए। सरकार ने कहा है कि बाकी चीजें माफ। अब सवाल उठा कि अगर मान लीजिए मेरे पास में टैक्स नहीं है डिस्प्यूटेड, ऐसा भी मामला हो सकता है कि टैक्स नहीं है डिस्प्यूटेड। बहुत सारे लोगों ने मेरे सवाल पूछा कि सर सरकार ने कहा कि 25% आप जमा करवा दीजिए पेनल्टी का या इंटरेस्ट का, तो ये इसका क्या मतलब है। तो सर ये उस केस में लागू होगा जब आपके पास में डिस्प्यूटेड टैक्स नहीं है। अगर डिस्प्यूटेड टैक्स है और उसके साथ में इंटरेस्ट और पेनल्टी भी है तो आपने खाली टैक्स जमा करवाना है, आपको पेनल्टी इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऐसी को अपील है जिसमें टैक्स तो है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, मैं बताऊंगा कहां हो सकता है। जैसे मान लो आपने टीडीएस की रिटर्न आपने फाइल नहीं की तो आपको फीस लगती है, या आपने टीडीएस रिटर्न लेट फाइल की, आपको खाली ब्याज लगा हुआ है। उस केस में सरकार ने कहा कि 25% आप जमा करवा दीजिए, ओनली 25% ऑफ द फी और द पेनल्टी, because there is no disputed tax, there is no basic tax amount, आप केवल 25% जमा करवा दीजिए एंड यू विल बी अब्जॉल्व, सारा केस खत्म। दैट इज विवाद से विश्वास स्कीम। आई विल कम टू द डिटेल, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि फीस क्या होती है, पेनल्टी क्या होती है और इंटरेस्ट क्या होता है। अगर हमें यह पता चल जाए कि फीस, पेनल्टी और इंटरेस्ट क्या होता है, देन व्हेन वी विल रीड द विवाद से विश्वास स्कीम इन डिटेल, इट विल बी वेरी इजी। आई हैव गिवन यू द इनिशियल थिंग्स ताकि आप समझ सके कि इनिशियली क्या है विवाद से विश्वास। नाउ आई विल कम टू द व्हाट इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन charged under the income tax act. There are 4 kinds of interest are charged under the income tax act. 4 तरह का ब्याज आपसे चार्ज करते हैं, बल्कि 5 तरह का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं आपसे इनकम टैक्स एक्ट में। नंबर 1 इज 234। सर स्लाइड शो करके कंप्लीट वो कर सकते हैं फुल स्क्रीन। स्लाइड शो में देखिए, स्लाइड शो के ऊपर प्रेस करेंगे तो इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। नजर नहीं आ रहा सर? देखिए सर ऊपर देखिए स्लाइड शो एनिमेशन के साथ में ऊपर की तरफ। हाँ हाँ यही इसी के राइट में, इसी के राइट में स्लाइड शो और फ्रॉम बिगिनिंग सर यहाँ से करिए। अब हाँ अब नीचे प्रेस करिए सर, अब नेक्स्ट पीपीटी पे जाइए। ये तो आधी आ रही है, अभी भी आधी आ रही है, आधी आ रही है सर। पहले ही ठीक थी, पहले ही ठीक थी, जैसे पहले कर रहे थे आप। एस्केप दबा दीजिए। हाँ ये ठीक है सर, पहले जैसे थे। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे चला दी। ठीक है सर, आ रहा है सर, आ रहा है। मैं भेज देता हूँ आपको कैसा नजर आ रहा है। ठीक है, लोगों को नजर आ रहा है ना आपको? यस सर आ रहा है। हाँ ठीक है। पर्पज इज द आई शुड सी द पीपल ऑल्सो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर टीचर को समझ में आता है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है, ये फेस रीडिंग से समझ में आ जाता है ना बात, ये तो ना तो वही चीज। ओके यस सर। ओके, तो फ्रेंड्स लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट
what kind of interest Income Tax Act charges upon the assessee. Okay, as I said, you have to file the return of income, and that there are due dates for the filing of return of income. For the individual assessee, the due dates are 31st July. This year, due to COVID, it has been extended. Otherwise, normal dates are 31st July for the assessee, for the individual assessee, whose accounts are not audited. For those assessees whose accounts are audited, 30th September is the due date. And for those assessees who has transfer pricing issues, the due date is 30th November of every year. These are the normal due dates. Now, first kind of interest the department charges, the Income Tax Act charges 234 capital A. For not filing the return in time or furnishing the return of income after the due date. मान लीजिए आपकी 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट है और आपको उस पर टैक्स पेएबल था 1 लाख रुपए। 31 जुलाई को आपका टैक्स पेएबल था 1 लाख रुपए, आपने टैक्स जमा नहीं करवाया, तो 1% पर मंथ, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, यानी 1,000 रुपए महीना आपसे सरकार चार्ज कर लेगी फॉर फर्निशिंग द रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट। इफ यू हैव डिपॉजिटेड द टैक्स अंडर सेक्शन 140A, सेल्फ असेसमेंट में आपने टैक्स जमा करवा दिया है, तो आपको 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पहली बार। Another interest is 234B. But before coming to 234B, I will come to 234C. You know, friends, friends, we have to deposit the advance tax. सरकार कहती है कि आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 में कमाया, आपने रिटर्न भरी फाइनेंशियल 2021 में जाके, क्योंकि अगले साल आप रिटर्न भरते हैं, आपने कमाया 1920 में, हमको आप रेवेन्यू दे रहे हो अगले साल में, then you have to pay the advance tax. And what are the rates of the advance tax? 4 installments of advance tax has to be paid. 15th June, 15th September, 15th December, and 15th March. Everybody knows if your total tax liability is more than 10,000, except in case of senior citizen who do not have any business income, every assessee has to pay the advance tax. And what are the slabs? What are the rates? 4 dates are there: 15th June, 15th September, 15th December, and 15th March. Now, this 15th December, third installment of advance tax has to be deposited, and up to 15th June, 15%, then 45%, then 75%, and 100% of the advance tax has to be deposited up to 15th day of March. 4 dates है और आपको 15, 45, 75 और 100% एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है। Now, if you are not deposited the advance tax, मान लीजिए आपने 30 सितंबर तक कोई एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया और आप उसके बाद जमा करवाते हैं एडवांस टैक्स, तो आपको 30 सितंबर तक 45% आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना था। तो जितना आपका डिफरेंस आएगा क्वार्टरली, उसका 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट टैक्स देना होगा। दैट इज 234C। यानी मान लीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए है, अप टू 15th जून आपको 15,000 रुपए जमा करवाना था एडवांस टैक्स। मैं एडवांस टैक्स में मान लो एडवांस टैक्स और टैक्स लायबिलिटी ऑलमोस्ट, अदरवाइज 90% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी हैज टू बी डिपॉजिटेड एज एडवांस टैक्स। मान लीजिए आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए थी, आपको 15 जून तक 15,000 रुपए, आपको 15 सितंबर तक 45,000 रुपए, 75,000 रुपए 15 दिसंबर तक और 1 लाख रुपए 15 मार्च तक जमा करवाना है। जितना पैसा आप कम जमा करवाएंगे उसका डिफरेंशियल अमाउंट निकालकर क्वार्टरली इंटरेस्ट सरकार आपसे चार्ज कर लेगी। दैट इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। नाउ व्हाट इज 234B? इफ यू हैव नॉट डिपॉजिटेड द एडवांस टैक्स, देन आफ्टर 31st March व्हाट विल हैपन? Then after 31st March, you will be charged interest under section 234B at the rate of 1%. यानी अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की 234A में आपको ब्याज देना है, आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया तो जिस फाइनेंशियल ईयर का एडवांस टैक्स है उसका डिफरेंशियल इंटरेस्ट आपको देना है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 234C में
और 1 अप्रैल असेसमेंट ईयर के यानी 1920 फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें, आपने 1920 फाइनेंशियल ईयर में एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया, तो पहले तो आप क्वार्टरली जो जितना डिफरेंस था आपका, यानी 30 जून तक 15 जून तक आप 15,000 रुपये ब्याज दे दोगे, 15 सितंबर तक 45,000 ब्याज दे दोगे, 15 दिसंबर तक 75,000 ब्याज दे दोगे, फिर 1 लाख पे ब्याज दे दोगे। वो तो क्वार्टरली डिफरेंस आ गया। और अगर आपने एक पैसा भी जमा नहीं करवाया एडवांस टैक्स का, तो 1 अप्रैल से लेके और जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे या जब तक आपकी असेसमेंट नहीं होगा रेगुलर असेसमेंट, 234B का आपका ब्याज चलता रहेगा 1% पर मंथ के हिसाब से। तीनों इंटरेस्ट 1% पर मंथ के हिसाब चलते हैं। 234C केवल ईयर में खत्म हो जाता है और 234A खत्म हो जाता है जैसे ही आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, 234A का ब्याज नहीं लगेगा। अनदर इंटरेस्ट इज 220 में, जैसे मैंने बताया था कि इन केस ऑफ द रेगुलर असेसमेंट, देखिए जब आप रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स की, तो सबसे पहले आपको एक इंटीमेशन आती है आजकल 143(1)A में, दैट इज सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन, एवरी असेसी इज गेटिंग ए इंटीमेशन कि आपने जो टैक्स जमा करवाया था, आपने जो डिडक्शंस क्लेम की थी, वो ठीक है, गलत है, वी एग्री और वी डू नॉट एग्री विद इट। If they do not agree with it or they make any addition under section 143(1), that is intimation, that is not assessment, please understand. But if any demand is raised under section 143(1)A in the intimation itself, that is also notice of demand under section 156, जिसको हम डिमांड कहते हैं। क्यों? जैसे आप नोटिस डिमांड आपको मिलता है, आपको 30 दिन के अंदर वो पैसा जमा करवाना होता है। अगर आप 30 दिन में वो पैसा जमा नहीं करवाएंगे, then you will be treated as a assessee in default under section 220। और assessee in default अगर आप बन गए तो आपको इंटरेस्ट चालू हो जाएगा और 221 में पेनल्टी भी लगा सकता है। सिंपल सा प्रोसेस सरकार ने बनाया जस्ट टू हैव ए डिटरेंट। भाई डिटरेंट होना चाहिए ना, कि आपने टैक्स ही जमा नहीं करवाया, आपको डिमांड निकाल दी तो आप भी जमा नहीं करवा रहे हैं, तो फिर आपको कहा कि आपको 220 में आप assessee in default हो गए और 221 में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का आपको मीटर चालू हो जाएगा। दैट इज फोर्थ काइंड ऑफ इंटरेस्ट, चौथा तरह का ब्याज हो गया ये वाला। फिफ्थ काइंड ऑफ इंटरेस्ट इज व्हेन यू डू नॉट डिपॉजिट TDS, टैक्स डिडक्टेड और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर आपने TDS नहीं काटा, द TDS व्हाट यू हैव टू, यू आर सपोज टू डिडक्ट फ्रॉम सेक्शन 192। कल जो मैंने बताया था कि 192 से सैलरी का TDS स्टार्ट होता है और 206 कैपिटल C तक जाता है TCS के लिए। एंड TDS, एज यू नो, वी विल हैव ए डिटेल्ड डिस्कशन ऑन TDS। TDS इज हैज टू बी डिडक्टेड बाय द 7th एंड टू बी डिपॉजिटेड बाय द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मान लीजिए आपका दिसंबर है, 31 दिसंबर का TDS है, आपको 7 जनवरी तक जमा करवाना होता है जनरली, बारिंग मार्च। अगर आपने TDS या TCS, या तो TDS काटा नहीं या TCS कलेक्ट नहीं किया, देन इंटरेस्ट इज 1% पर मंथ फ्रॉम द डेट इट वाज डिडक्टिबल टू द डेट इट वाज एक्चुअली डिडक्टेड। अप्रैल का TDS आपने दिसंबर में काटा तो आपको 1% पर मंथ का ब्याज सरकार आपसे चार्ज कर लेगी। लेकिन अगर आपने TDS काट लिया और सरकार को जमा नहीं करवाया, तो सरकार कहती है कि यार कमाल है, आप हमारे ही पैसे को दबाए बैठे, हमारे पैसे से आप मजे ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट का रेट हो जाएगा 1.5% पर मंथ। प्लीज अंडरस्टैंड, इन सेक्शन 201 कैपिटल A, 201(1) कैपिटल A, two kinds of interest is there. If you have not deducted the TDS, you have not deducted, you forget to deduct, then the interest will be 1% from the date when it was deductible, due for deduction, till the date it was actually deducted. But you have deducted from the party but not deposited, then the rate of interest will be 1.5%. Please understand the differentiation, please understand the differentiate. There is a difference. अगर आपने टैक्स काट के अपने पास रख लिया तो 1.5% ब्याज है, और अगर आपने टैक्स नहीं काटा था तो 1% ब्याज है। मैं पेनल्टी की बात बाद में करूंगा, पेनल्टी क्या लगेगी, अभी हम खाली ब्याज की बात करते हैं। तो 5 काइंड ऑफ इंटरेस्ट, 234A, 234B, 234C,
220 cap 2 and 2011 capital A. That is for non-deduction of TDS or TCS. Now I come to the fee, because when we will discuss Vivad se Vishwas, the terms will be disputed interest, disputed fee, disputed penalty, disputed tax. So we got understanding about the disputed interest. Interest, if it is pending for dispute, then it will become disputed interest, of course, simple. Second is the fee. Now friend, do you know what is the difference between fee and penalty? जब सरकार पेनल्टी लगा सकती है तो फीस क्यों लाई? और कई जगह आप देखना पेनल्टी भी लगेगी और फीस भी लग जाएगी, फीस भी लगेगी और पेनल्टी भी लगेगी. द लाइव एग्जांपल इज टीडीएस. अगर आप टीडीएस की रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो आपको फीस भी है और पेनल्टी भी लेवी हो सकती है टू द इक्वल अमाउंट. देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है अजय जी या प्रिंस जी? बेसिक डिफरेंस है फीस इज मैंडेटरी बट पेनल्टी हैज टू बी लेवीड. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है, मैंने कल एक बात बताई थी आपको, आर्टिकल 265 कहता है कि नो टैक्स कैन बी लेवीड, नो टैक्स कैन बी चार्ज विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ. एंड लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि नो पेनल्टी कैन बी imposed, no penalty can be imposed without giving a person of opportunity of being heard. जब तक आप सामने वाले की बात ही नहीं सुनोगे तब तक आप उसको पेनलाइज नहीं कर सकते. दिस इज लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो होता क्या था, पेनल्टी लगाते लगाते पहले वो लगाता था, कभी इनकम टैक्स ऑफिसर भूल जाता था, फिर हम लोग जाके उसको करते थे, लिटिगेट करते थे, तो पेनल्टी में सक्सेस बहुत कम हो पाती थी. सरकार ने चेंज कर दिया सिस्टम. सरकार ने कहा पेनल्टी तो गई, हम फीस लगाना शुरू कर देते. एंड फीस इज मैंडेटरी, इट इज नॉट टू बी लेवीड, इट इज ए पार्ट. जैसे आपको ब्याज है 234 का ब्याज आपको ऑटोमेटिकली देना है, 234 बी का ब्याज आपको ऑटोमेटिकली देना है. इफ व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम, अगर आपने एडवांस टैक्स एक पैसा जमा नहीं करवाया तो आपको 234 ए, 234 बी, 234 सी, और अगर उसको लेट भी जमा करवा रहे हैं तो 234 ए का ब्याज अपने आप लग जाएगा. मैंडेटरी है, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है. तो फी इज मैंडेटरी, फी इज नॉट टू बी लेवीड, इट इज नॉट टू बी इनिशिएटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नो नीड. 3 काइंड ऑफ फीस आर देयर, और सबसे खतरनाक है 234E. 234E इज फॉर नॉट फर्निशिंग द TDS रिटर्न्स. अगर आपने TDS की रिटर्न्स को नहीं जमा करवाया, देखिए TDS जमा करवाने की ड्यू डेट जैसे मैंने बताया था कि आपको TDS 7 तारीख तक जमा करवाना था जनरली, 31 मार्च का 30 अप्रैल होता है, और आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है TDS की और TCS की. ठीक है, अगर आप TDS और TCS की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे क्वार्टरली, 200 रुपए पर डे की ब्याज, 200 रुपए पर डे की पेनल्टी है. अब आप लगा लीजिए, अगर मान लो कोई रिटर्न फाइल करना भूल गए और 3 साल बाद आपको याद आया तो कितनी पेनल्टी लगेगी. हाँ, देयर इज ए राइडर, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ द टैक्स. अगर मान लो टैक्स 10,000 है तो पेनल्टी, द फी कैन नॉट बी इन एक्सेस ऑफ 10,000 रुपीज, और पेनल्टी कैन नॉट ऑल्सो एक्सीड द अमाउंट ऑफ द नॉट टू बी. लेकिन अगर मान लीजिए आपने बहुत बड़ा TDS का अमाउंट जमा नहीं करवाया या जमा करवाना भूल गए, या आपको पता ही नहीं था कि मुझे काटना था TDS, तो आपको ब्याज भी लगेगा, आपको फीस भी लगेगी, आपको पेनल्टी भी लगेगी, और प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च होता है आजकल. तो TDS के मामले में बहुत सरकार सकता है. तो 234 इज ए फी. प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड फी. फी इज मैंडेटरी. अनदर इज 234F. पहले 271F की पेनल्टी हुआ करती थी फॉर नॉट फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, की 5,000 रुपए की पेनल्टी डिपार्टमेंट लगा सकता है अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की. वही होता था कि 5,000 रुपए की पेनल्टी लगाने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर नोटिस ही नहीं देता था. सरकार ने कहा बात ही खत्म कर दो, 234F का पेनल्टी फीस लगा दी है. और फीस कितनी है? अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 1,000 रुपए. आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, 31 दिसंबर तक फाइल कर देंगे तो 5,000 रुपए. 31 दिसंबर के बाद फाइल करेंगे, 31 मार्च के बाद तो फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि द रिटर्न कैन बी बिलेटेड, रिटर्न कैन बी फाइल्ड अप टू
द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर ओनली नाउ, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। तो 10,000 रुपए 234 की एफ की ब्याज ये पेनल्टी है। 234G, this fees has been introduced in this year only, and the fee is for, as you know, if you are working with the NGOs or the trust who have certificate under section 80G, अगर 80G में जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं उनको डोनेशन मिलती है, डोनर उनको डोनेशन देते हैं और आप उनको 80G में उसको छूट मिल जाती है जो डोनेशन देता है। उसमें बड़ा घपला चल रहा था नाम किसी का, काम किसी का, पैसा किसी का, चेक किसी का, छूट कोई ले रहा है। टू कंट्रोल दैट, दिस फाइनेंस एक्ट 2020 has completely revamped, completely changed the whole system of registration of NGOs, charitable trust. Now, the government has said that every trust, every charitable trust who are registered under section 12AA has to get the registration renewed. सबको रजिस्ट्रेशन नया लेना है। 1 अप्रैल 2021 डेट बढ़ा दी, पहले 1 अक्टूबर 2020 थी, अब 1 अप्रैल 2021 कर दिया है सरकार ने कि सबको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना है। सेक्शन भी चेंज कर दिया, 12AA को 12AB कर दिया, और जितने भी 80G वाले थे सबको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जैसे TDS की रिटर्न जाती है, ऐसी ट्रस्ट को मैंडेटरी कर दिया कि वो एक रिटर्न फाइल करेंगे कि फ्रॉम whom यू हैव रिसीव्ड द डोनेशन। आपको डोनेशन कहां से आया है, उस डोनर की आप नाम दीजिए, उसका KYC दे दिए, उसको पैन दे दिए, तभी आपको डिडक्शन देंगे और तभी उसको भी मिलेगी छूट। तो सारे के सारे पकड़े जाएंगे। आप एनोनिमस डोनेशन नहीं ले सकते। वैसे भी एनोनिमस डोनेशन अंडर सेक्शन 115 DBC आपने पढ़ा हो तो वहां पर वो टैक्सेबल है, लेकिन अब KYC देना जरूरी हो गया। और एक काम दिया 234G में, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, आप अगर ये रिपोर्ट फर्निश नहीं करेंगे, तो आपको फी लगेगी 200 रुपए रोज, 200 rupees per day fee has to be levied. मतलब levied, there is no need to levy. Again, I will say it is a automatically fee. So 3 kind of fee department charge, 5 kind of interest I have given, 3 kind of fees, 234E for late furnishing the TDS return, 234A for late furnishing of your return of income, and 234G for not furnishing or late furnishing of the report by a donee trust. That is fee under the Income Tax Act. Now I come to the penalty. कि what are the penalties? देखिए, सबसे बड़ी पेनल्टी एक लगा करती थी, that was 271(1)(c। बहुत खतरनाक पेनल्टी हुआ करती थी। असेसमेंट 147 में होगी या आपकी 153 में असेसमेंट होगी सर्च वाले केसेस में। तो जो भी एडिशन करेगा असेसिंग ऑफिसर, उस पर जितना भी एडिशन हुआ, तो 271(1)(c में एक पेनल्टी लगा करती थी, उसको कहते थे हम कंसीलमेंट की पेनल्टी, कि आइदर यू हैव गिवन द रॉन्ग पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम टैक्स, और you have concealed the income, or given the inaccurate particular. But with Finance Act 2016, I will request the audience, please on your videos, at least 2-3% should be on the screen so that I can see. Rajendra ji, if you can, if you are hearing me, or Pravinder, if you are hearing me, please on your video, at least 2-3% should be there. Then this 271(c) was changed by another section, that is 270(A) by the Finance Act 2016. 2016 के एक्ट ने इसको चेंज कर दिया। And now capital A penalty is for under reporting or misreporting of your income. The department says कि आपने जब असेसमेंट आपकी हुई, रेगुलर असेसमेंट, हमने एडिशन किया, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 30 लाख की एडिशन कर दिया, तो आइदर यू हैव अंडर रिपोर्टेड द इनकम और यू हैव मिस रिपोर्टेड द इनकम। तो 30 लाख रुपए की जो इनकम आपकी अंडर रिपोर्ट हुई, उस पर हम आपसे पेनल्टी भी चार्ज करेंगे। एंड इफ इट इज अंडर रिपोर्टिंग, देन the penalty is 50%.
If it is misreporting, the penalty is 200%. Then the natural question arises, what is the difference between underreporting and misreporting? भाई आपने 30 लाख की इनकम अंडर रिपोर्ट किया तो पेनल्टी 50%, अगर आपने मिस रिपोर्ट किया तो पेनल्टी 200%। तो अब सवाल उठा कि मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग में फर्क क्या है? फर्क यह है कि मान लीजिए आपने डेप्रिसिएशन गलत क्लेम कर लिया, या आपने कोई ऐसी डिडक्शन क्लेम कर ली जो आपको नहीं मिलनी चाहिए थी, तो पेनल्टी 50% की अंडर रिपोर्टिंग हो गया। या जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है कि आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, दो देवर बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो अंडर रिपोर्टिंग है। लेकिन इफ इट इज ए कंसीलमेंट ऑफ द इनकम, आपने मेंसिया के साथ काम किया, विद मोटिव काम किया, आपने फर्जी बिल डाल दिए, आपने परचेज की बिल ले रखे हैं, आपने सेल को अंडर रिपोर्ट कर रखा है, आपने ऐसा कुछ काम कर रखा है जहां पे लगता है कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पर्सन, देन दैट इज द केस ऑफ द मिस रिपोर्टिंग एंड द पेनल्टी विल बी 200%। 200%। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मैंने बताया था, टेक माय एग्जांपल, यू फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर 20 लाख, 20 लाख की आपने रिटर्न फाइल की, 30 लाख रुपए की एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने कर दिया, 50 लाख रुपए का ऑर्डर आपके पास आ गया। तो देखिए आपको क्या क्या लगेगा, मैं टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, जो 30 लाख का एडिशन हुआ उस पर आपको 30% टैक्स लग गया, ठीक है सर। उसके अलावा आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपने नोटिस ऑफ डिमांड के बाद भी आपने मान लो आपको 30 दिन में टाइम देते हैं, उससे पहले जब तक असेसमेंट, जब तक ब्याज देना है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम टू द डेट ऑफ द असेसमेंट। उसके बाद में आपको क्या देना है? उसके बाद आपको ब्याज देना 220 का, उसके बाद आपको पेनल्टी भी लेविड होगी 270 ए की, that can be up to 50% or 200% of the tax levied. That is under reporting or misreporting of income. Second penalty is 271(1)(b), failure to comply with the return or the notice. If you are getting a notice from the department and if you do not comply with it, आपको 142(1) का नोटिस कई बार आता है हमारे पास में फॉर प्रोफेशनल्स। नोटिस आया 142(1) का, हमने जवाब नहीं दिया, सोचते हैं क्या जवाब देना, तो इनकम टैक्स ऑफिसर Sir, we are not able to hear you. बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे मैंने बताया था कि आपको 7 साल के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट रिटेन करनी है, ठीक है। अब एक सेक्शन है 44AA। 44AA से कि आपको किन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। वहां पे आपको लिमिट्स दे रखा है कि अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख रुपए तक है, आपका प्रॉफिट 2.5 लाख से ज्यादा है या 1,20,000 ज्यादा है प्रोफेशनल केस में, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की या रिटेन नहीं की, then a penalty of rupees 25,000 can be levied under section 271 capital A. Then comes the penalty under section 271AA(b). That's a very harsh provision. अगर सर्च इनिशिएट हो गई आपके यहां पर और अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिल गई, आपके घर पर रेड पार्टी आई, आपको रेड किया, आपकी वाइफ के पास में 2 किलो सोना मिल गया, गोल्ड मिल गया, और आप जवाब नहीं दे पाए। प्रवींद्र जी हंस रही हैं, आप जवाब नहीं दे पाए, तो सर आपको जो पेनल्टी है दैट कैन गो अप टू 60%। देखिए मैंने कल बताया था, आपको ध्यान होगा, हमने सेक्शन 68 की हम बात कर रहे थे, सेक्शन 68, 69, 69 ABC, अनडिस्क्लोज्ड इनकम या अनडिस्क्लोज्ड या अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स या कैश क्रेडिट्स, तो टैक्स रेट इज 78%। और जब भी रेड होती है या जब भी जहां आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपनी इनकम को, तो एडिशंस आर मेड अंडर सेक्शन 68 to 69, तो 78% टैक्स आपको देना होता है। उसके अलावा अगर आप सर्च के दौरान आप डिस्क्लोज आपने नहीं किया या आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, द पेनल्टी कैन बी लेविड अप टू 60%।
अगर आपने सर्च के दौरान डिस्क्लोज कर दिया और उसका सोर्स बता दिया 30% है, पता नहीं, ये मुझे समझ नहीं आया कि अगर वो अनडिस्क्लोजर सोर्स कैसे बताएगा आदमी। अदरवाइज अगर आपने उसको लिटिगेशन में चले गए तो 60% पेनल्टी। कहने का मतलब है कि अगर आपके यहाँ रेड होती है और 1 करोड़ रुपए का आपको मान लीजिए उन्होंने एडिशन कर दिया, तो टैक्स एंड पेनल्टी कैन गो अप टू 1.1 करोड़ 38 लाख, 138% तक आपसे सरकार ले सकती है टैक्स और पेनल्टी के रूप में, 138%। और मिनिमम अगर रेट में 108% ही है, 78% टैक्स प्लस 30% पेनल्टी तो है ही कम से कम। तो अगर आपके यहाँ इनकम टैक्स रेट है 132(1) में, तो टैक्स द मिनिमम रेट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी विल बी 108%, इट कैन गो अप टू 138%, दैट इज 271AA-B। अनदर इज 271AA-C, दैट इज 68-69 में बताया कि अगर मान लो 68-69 में एडिशन हुआ रेगुलर असेसमेंट में, रेट की केस नहीं है आपका, तो पहले ही उन्होंने आपसे क्योंकि 78% टैक्स दे लिया था, तो पेनल्टी 10% लगा सकते हैं, 10% ऑफ 60%, यानी it can go up to 84%. In case of regular assessment, please understand the difference. रेगुलर असेसमेंट आपका हुआ 43(2) में, 68 में एडिशन कर दिया, तो आपको 78% तो टैक्स देना है और 6% पेनल्टी देनी है। लेकिन अगर आपके इनकम टैक्स की रेट होती है तो 78% आपको टैक्स देना होगा और 60% पेनल्टी लग सकती है आपके ऊपर, दैट इज सेक्शन 271AA-C। मैं इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ पेनल्टीज को, क्योंकि जब आप विवाद से विश्वास का फॉर्म भरेंगे तो आपको ये सारी बातें, यू शुड नो एटलीस्ट व्हाट इज द बेसिक प्रोविजन फॉर द पेनल्टी। Another very interesting penalty provision, and this has been levied in the Finance Act 2020 only. 2020 में ये पेनल्टी प्रोविजन आया है। आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे कि जीएसटी के फर्जी बिलिंग हो रहा है, जीएसटी के फर्जी बिलिंग हो रहा है। एक रैकेट है जिसने 1000 करोड़ की बिलिंग कर दी, 500 करोड़ की बिलिंग कर दी। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने अगर फर्जी बिल आपने डाले, आपने कोई फर्जी एंट्री की, आपने फर्जी बिलिंग डाली अपने अकाउंट्स में अपने प्रॉफिट को डाउन करने के लिए, तो जीएसटी में जो होगा वो तो होगा ही होगा। बट ए वेरी draconian, very stringent provision has been made in this Finance Act 2020, and that is 271AA-D. परमिंदर जी आप मेरी बात ध्यान से सुनना, 271AA-D। और इसमें कहा है बिल देने वाला, बिल लेने वाला और बिल दिलवाने वाला, तीनों को पेनल्टी लगेगी। इफ यू हैव टेकन ए फेक इनवॉइस, फेक एंट्री, फेक बिलिंग, और आपने फेक बिल, आपके पास मिल गया, आपने एंट्री नहीं की, मान लो उसकी आपने फेक एंट्री की है तो भी, तो प्रोफेशनल शुड कीप इट इन माइंड, प्लीज डू नॉट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस and please do not entertain such clients to whom you think they are engaged in such kind of practices, otherwise you will be in a problem, you can be fixed। 270J की बात तो बात है सर, अभी तो 271AA इतना खतरनाक प्रोविजंस है। आजकल डिपार्टमेंट को ना प्रोफेशनल्स, दे आर द होली काउ फॉर देम, कि प्रोफेशनल्स के ऊपर डाल दो। Please understand and read 271AA-D. This has been made in this Finance Act only, and all the three persons can be penalized under section 271AA-D. Then comes 271B, failure to get the accounts audited. And you know, if you are required to get your accounts audited, if your turnover is more than 1 crore। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जो लोग गलती करते हैं हमेशा, अगर आप 44AD में चले गए, मान लीजिए 44AD में, तो लोगों को लगता है कि क्योंकि मेरा ऑडिट नहीं हुआ तो मुझे टैक्स टीडीएस की लायबिलिटी भी नहीं है। बट सर प्लीज अंडरस्टैंड, द टीडीएस लायबिलिटी इज नॉट रिलेटेड टू द टैक्स ऑडिट सिनेरियो। If your turnover is more than 1 crore, now this year changes has been made in the respective section also. If your turnover is more than 1 crore, then you are under the liability to deduct the TDS। हाँ, अगर आपकी 1 करोड़ से कम है, बिजनेसमैन की और प्रोफेशनल की 50 लाख से कम है, तो तब अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है, उस केस में टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती है। लेकिन अगर आप 2 करोड़ तक चले गए 44AD में, बट यू कैन नॉट बी अब्जॉल्व फ्रॉम टीडीएस लायबिलिटी। प्लीज अंडरस्टैंड,
Now, coming back to 271B, if you do not or you fail to get your accounts audited, then the penalty of 0.5% of the turnover or 1.5 lakhs can be levied on you. Another is 271C, as TCS नहीं काटा या TCS collect नहीं किया, then you can be penalized under section 271C, and that penalty can be levied up to the deductible of TCS to be collectible. Another is 271D, बड़ा खतरनाक प्रोविजन है, ध्यान से सुनना, और ये गलती करते हैं सब लोग। 269 एक ऐसे है प्रोविजन, 269 SS कैपिटल। अगर आपने 20,000 का कैश में लोन ले लिया, 20,000 से ज्यादा, तो आपको पेनल्टी लगती है। लेकिन इसमें एक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन और डाल दी थी, अगर आपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी कैश ले लिया 20,000 रुपए से ज्यादा, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कैश में रजिस्ट्री करवा देते हैं, सेल डीड में कैश लिखवा देते हैं। अगर आपने कैश सेल की प्रॉपर्टी की, तो आपको 269 SS की पेनल्टी लग सकती है। मान लीजिए आपने 2 करोड़ रुपए कैश में सेल कर दिया, या आपने एग्रीमेंट पे एडवांस ले लिया। जनरली ऐसा ही होता है। विपिन जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? प्रिंस जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ कर दीजिए। जब एग्रीमेंट करते हैं प्रॉपर्टी सेल परचेज का, तो होता क्या है, वो नगद का एग्रीमेंट बना लेते हैं, 5 लाख रुपए एडवांस प्राप्त किए और वो एग्रीमेंट अपने घर में रखते हैं लोग। 50 लाख रुपए नगद प्राप्त किए, क्योंकि उस टाइम में जब प्रॉपर्टी की डील हो रही होती है, अक्रॉस द टेबल होती है, भाई पैसे रख, डील करनी है। तो 269 SS में पेनल्टी लग सकती है, 100% पेनल्टी है। इसलिए ऐसी कोई ट्रांजेक्शन आप करें जहां पर आपको लगता है कि कैश पे, और ये मैंने बताया कि कैश लोन तो नहीं, पर कैश में प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन जरूर हो जाती है, प्लीज अंडरस्टैंड। अनदर 271DA, 269T का उसकी बहन भाई हैं आपस में। अगर आपने कैश लोन लिया और कैश लोन वापस कर दिया, और बड़े मजे की बात है, मान लीजिए आपने 5 लाख का कैश लोन ले लिया और 5 लाख का कैश वापस कर दिया, पेनल्टी दोनों बार लग जाती है, लेने पे भी और देने पे भी। द गवर्नमेंट इज so scared to stop these kind of transactions. Then 271E, that is 271DA is for 269ST. There was a provision and it was brought in by the Finance Act 2017, I think. लाख रुपए से ज्यादा अगर आप कैश रिसीव करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में, इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन फॉर ए सिंगल डे, 2 लाख रुपए ज्यादा, और ये जनरली गलती करते हैं बैंकेट हॉल वाले या ज्वेलर्स या घड़ियां जो बेचते हैं हाई प्राइस की। बैंकेट हॉल वाले क्या करते हैं, कैश में रिसीव कर लेते हैं। सर अगर आपने एक सिंगल इवेंट के लिए, हो सकता है कि उसमें टेंट वाला भी हो, उसमें बाजे वाला भी हो, उसमें घोड़ी वाला भी हो, लेकिन अगर आपने 2 लाख रुपए ज्यादा रिसीव कर लिया किसी बैंकेट वाले ने, तो पेनल्टी लग जाएगी 269 ST की वायलेशन की, 100% पेनल्टी है फिर। या ज्वेलर्स 2 लाख से ज्यादा कैश का बिल ज्वेलरी का काट देते हैं अगर आपका क्लाइंट कोई है, 100% पेनल्टी है। ध्यान रखने वाली बात है, बड़ी बेसिक बातें समझा रहा हूं जो हम भूल जाते हैं, हम गलतियां करते रहते हैं, फिर क्लाइंट्स भी हमसे कहते हैं जी यही क्या हो गया। गलती तो क्लाइंट ही करता है, बट आवर ड्यूटी इज टू मेक देम अंडरस्टैंड द थिंग्स। Then comes 271E, that is another for repayment of cash loan. Very important transaction, very important. Please, if you are either employed or if you are in practice, there is section 285BA. जनरली हम भूल जाते हैं, हमको नहीं पता। एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हम सोचते हैं कि एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट केवल बैंक का काम है या पोस्ट ऑफिस का काम है या रजिस्ट्रार का काम है। नहीं सर, अगर आपके क्लाइंट ने 10 लाख रुपए ज्यादा शेयर इशू की है, शेयर कैपिटल इशू की है, एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में जाती है। अगर आपने प्राइवेट कंपनी है और 10 लाख ज्यादा आप शेयर इशू करते हैं, आपको AIR फाइल करनी है, एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मई की डेट होती है उसकी, और पेनल्टीज 500 रुपीज पर डे। एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अगर आप प्रोफेशन में हैं या आप जॉब में भी हैं, तो सबसे पहले 285 रीड विद रूल 114E पढ़ लीजिए कि अगर आप AIR आपको लागू तो नहीं होती, बहुत कम केस में लागू होती है, जनरली बैंक्स के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, रजिस्ट्रार के लिए है, लेकिन अगर लागू होती है AIR, क्योंकि देखिए जो 26 ईयर्स में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन
कार खरीदी है, बैंक से अपने कैश निकाला है, तो बैंक रिपोर्ट करता है ना। ऐसे ही 114E में जहां जहां भी लाइबिलिटी आपको दे रखी है, जैसे मैंने किस बताया, आपने अगर 10 लाख ज्यादा शेयर्स अलॉट किए हैं तो AIR जाती है आपकी सर। तो आपको ये ध्यान रखना है, अदरवाइज 500 रुपए रोज की पेनल्टी है 271FA। 271H, अगर आपने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर दे दिया TDS या TCS रिटर्न। देखिए TDS TCS रिटर्न्स को लेकर सरकार कितनी स्केर्ड है। So many penalties, and even prosecution is there. आपको ब्याज, आपने गलत पर्टिकुलर दिया तो भी आपने फीस भी आपको 200 रुपए देनी है, आपको पेनल्टी भी देनी है। तो TDS की या TCS की रिटर्न में कभी डिले नहीं करना। और आप एक और बड़े मजे की बात बताता हूं, आपने मान लो ब्याज भी दे दिया, आपने फीस भी दे दी TDS की, आपने जमा भी करवा दिया, even then prosecution can be launched against you under section 271 capital B. Such a harass provision of the TDS. बहुत सारे कन्विक्शन हुए हैं जहां पर TDS लेट जमा हो गया था, ब्याज के साथ भी जमा हो गया था, फीस भी जमा हो गई थी, फिर भी आपको प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो जाता है। इसलिए TDS के मामले में कोई कोताही नहीं करनी। 271J इज फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वैल्यू और मर्चेंट बैंकर। इसलिए व्हेन एवर यू आर इशूइंग ए सर्टिफिकेट, एटलीस्ट those guys who are practicing chartered accountant, please understand the penalty is ₹10,000 only, 10,000 ज्यादा नहीं। लेकिन if you are being levied, if you are convicted under this 271J, that you are a chartered accountant institute, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो 10,000 की पेनल्टी तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देन कम्स द प्रोसिक्यूशन। और जनरली जो प्रोसिक्यूशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, दैट रेंजेस फ्रॉम 3 months to 7 years, 3 साल से 7 साल तक कन्विक्शन होता है। पहले हमने 30 साल की प्रैक्टिस में नहीं सुने थे, लेकिन पिछले 3 सालों में हमने बहुत सारे केस देखे हैं जहां पे प्रोसिक्यूशन आइदर लॉन्च हो गए हैं या प्रोसिक्यूशन सरकार लगा रही है। इवन फॉर नॉट फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द डिपार्टमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 276B, not filing of TDS, failure to pay TDS और TCS और both, और D1 distribution tax। DDT अब खत्म हो गया, पर 276B में प्रोसीजर लॉन्च हो जाता है अगर आपने TDS या को टाइम पे जमा नहीं करवाया। इवन रिपोर्टिंग आपने की मान लो इनकम की, तो एंड इफ यू आर इवेडिंग द टैक्स, the penalty can, the prosecution can be launched under section 276C. failure to furnish return of income, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सर प्लीज अंडरस्टैंड, केवल उन्हीं लोगों को रिटर्न नहीं भरनी जिनकी इनकम ज्यादा है। आजकल नए प्रोविजन आ गया है। लास्ट फाइनेंस एक्ट में सरकार ने कहा है कि अगर आपने 2 लाख रुपए ज्यादा विदेश यात्रा में खर्च किए, या आपका 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल है, या आपका 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बैंक में ट्रांजेक्शन किया है, इवन देन यू हैव टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। बड़ी कैजुअल अप्रोच से रिटर्न कभी भरते हैं, कभी बंद भी कर देते हैं। But if you are not filing the return of income and the tax evaded is more than 25,000 rupees, then the prosecution can be launched against you under section 276CC। 276CC अगर आपने सर्च केस में रिटर्न फाइल नहीं की है। 276D अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, पेनल्टी कैन बी लेवीड। 277 अगर आपने कोई स्टेटमेंट फॉल्स वेरिफिकेशन आपने किया, फॉल्स एफिडेविट दिया या फॉल्सिफिकेशन किया, 277, 277A में ये आपको पेनल्टी प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकता है। 278 अबेटमेंट, जैसे मैंने बताया ना कि प्रोसिक्यूशन लॉन्च जो अबेट कर रहा है, जो प्रोफेशनल है, या जो अगर आप एम्प्लॉई हैं, आप किसी अच्छी सीनियर पोजीशन पे हैं, एंड इफ इट इज प्रूव्ड दैट यू आर द पर्सन बिहाइंड द शो, even then you can be prosecuted। I think I have completed the interest. What is interest?
what is fees, and what are the penalties and prosecution. Now we come to the Vivad se Vishwas ki. Any question from anybody? You can raise your hands for 5 minutes. I take the break of 5 minutes for question. सर एक क्वेश्चन था कि मान लीजिए टीडीएस हमने काटा और उसके बाद हमने जमा भी करा दिया, लेकिन उसकी रिटर्न जो है वो अभी कह रहे हैं कि एक्सटेंड हो गई है, अप्रैल में भी आप जमा करा सकते हैं। अक्टूबर के अंदर अगर आपने टीडीएस काटा तो उसकी रिटर्न आप अप्रैल में भी जमा करा सकते हैं। नहीं, अभी हम कोविड-19 की बात ना करें। ओके ओके ओके, मैं बताता हूँ ना सर आपको। देखिए क्या है कि जो डेट्स एक्सटेंड हुई हैं, अभी हम ये कौन से साल की बात कर रहे हैं? इसी साल की। हाँ, तो इस साल में सर, इस साल में कुछ रिलैक्सेशन दिया था, और विशेषकर रिलैक्सेशन ये दिया था कि आपने 22 मार्च को नोटिफिकेशन आया था, 22 मार्च से लेके और आई थिंक 30 जून तक की जो ड्यू डेट्स थी उनको रिलैक्स किया था, तो उसमें रिलैक्सेशन है। एग्जैक्ट डेट्स मुझे ऐसे याद नहीं है। वहां पे टीडीएस रिटर्न भरने की जो लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई कर दी थी कि 31 जुलाई तक आप सारी रिटर्न फाइल कर दीजिए। क्योंकि रिटर्न फाइलिंग मैं नहीं करता तो इसलिए मुझे वो डेट्स याद नहीं है। तो अदरवाइज नॉर्मली द प्रोविजन इज दैट यू हैव टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न। ठीक है ना? इस साल की स्पेशल डेट है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट 31 जनवरी है ना? टैक्स ऑडिट की भी 31 जनवरी है, तो टीडीएस की रिटर्न्स भी डिले है। पर इस साल तो प्रोसिक्यूशन लॉस इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि वैलिड रीजन है ना कि साहब रिटर्न डेट होगी तो कोई बात नहीं। एनीथिंग एल्स? सर एक चीज पूछना था आपसे, अगर किसी की टैक्सेबल इनकम नहीं है तो क्या उसको नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन सर, मजा आ गया सर। मजा आ गया सर। देखिए सर, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि टैक्सेबल इनकम नाम की चीज ही नहीं होती हमारे यहाँ पे कोई। वही सर, लिमिट वाली टोटल इनकम। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। जी सर। सर टोटल इनकम का कंसेप्ट है हमारे यहाँ पर, और टोटल इनकम का मतलब होता है इनकम कंप्यूटेड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जहां आप पहले 5 हेड में इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जो क्लबिंग है या जो आपके दूसरे लोगों की इनकम आपको जुड़नी होती है वो जुड़ जाती है, उसके बाद आपका जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस है वो आप कम करते हैं, और उसके बाद में आपको 80 से डिडक्शन मिलती है। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो सेक्शन की प्लेसमेंट है आपको उसी हिसाब से चलना है। आप ये नहीं है कि पहले आप एटीसी की छूट ले लेंगे फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जैसे आपको सेट ऑफ, क्योंकि ये जो सेक्शंस प्लेस किए हुए ना इनकम टैक्स एक्ट में, हमें उसी तरह चलना चाहिए। तो 139 में चेंज किया था सरकार ने कि अगर आपकी टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 8 चैप्टर 6 और कैपिटल गेन 1038 अब तो खत्म ही हो गया, खैर वो, इवन देन अगर आपकी टोटल इनकम है बिफोर क्लेमिंग एनी डिडक्शन इज मोर देन 2.5 लाख, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। हाँ, अगर मान लो आपकी सपोज करो आपकी 4 लाख रुपए की इनकम है और आपने 2 लाख रुपए की छूट क्लेम कर ली, आपकी टोटल इनकम आ गई 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो आपकी टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम टैक्स 0 हो गया, टैक्स ऑन द टोटल इनकम, बट स्टिल यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। देखिए आपको पता है कि हमारे जो डिडक्शंस और इनकम टैक्स की डिडक्शन क्लेम करने के बाद तो 9.5 लाख रुपए तक की इनकम पे भी आप टैक्स 0 हो सकता है आपका। जी सर। हो सकता है ना सर? 2 लाख का हाउसिंग लोन का छूट ले लीजिए, 1.5 लाख रुपए की आप एटीसी ले लीजिए, 4 हजार का एनपीएस ले लीजिए, 4 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए, तो आपकी इनकम 5 लाख से कम आएगी तो आपको 87A में छूट मिल जाएगा। लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है बिफोर क्लेमिंग डिडक्शंस। टोटल इनकम अगर आपकी बिफोर डिडक्शंस 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, और इन केस ऑफ फर्म और कंपनी तो 0 पे भी आप रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है, वहां तो कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ही नहीं। तो सर जैसे मेरा एक एम्प्लॉई है, अभी उसको करंट ईयर मैंने देखा कि अभी जो 5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन है, तो मैं उसको 40,000 रुपीज सैलरी दे रहा हूँ, तो वो 2.5 लाख रुपए क्लॉज में तो उसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा सर, वो तो 100% ही करना पड़ेगा। जी
उसको तो 87A की छूट मिली है ना सर, अच्छा अदरवाइज छूट ही क्लेम नहीं कर सकता। देखिए एक आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ सर, अगर आपको कहते हैं ना बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती, है ना, कहावत सुनी ना आप लोगों ने। जी सर। अगर इफ यू हैव नॉट क्लेम्ड एनी डिडक्शन एनी रिबेट देन इट इज नॉट ऑटोमेटिकली अलाउएबल टू यू। आपको था मुझे 87A की छूट मिलनी थी, अरे भाई आपने क्लेम की, आपने क्लेम नहीं की तो सर आपको नहीं मिली। प्लीज अंडरस्टैंड, डिपार्टमेंट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव यू सुमोटो और ऑटोमेटिक डिडक्शन सर, you have to claim them. The law is very clear on this. नहीं सर, आपको में छूट देगी तो आपको क्लेम करनी पड़ेगी, आपने क्लेम नहीं की तो आपका राइट नहीं है सर। नहीं सर, माफ कीजिएगा, मान लीजिए एक ऐसा बंदा है उसको खाली सैलरी इनकम है और कुछ उसकी इनकम नहीं है, वो 80-50 कोई डिडक्शन विडक्शन लेता नहीं है। सर मैंने बताया ना कि आपको 4,80,000 रुपए मान लो आपकी इनकम है, तो हाँ, आपको 87A में छूट मिलेगी 12,500 रुपए की, आप ये कह रहे हो ना? नहीं मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वही बोल रहे हैं ना आप सर। 87A क्या हुआ ये? नहीं 87A है कि अगर आपका 5 लाख रुपए पर आपकी अगर 5 लाख रुपए की इनकम है, टोटल इनकम, जी जिसको सर। टोटल इनकम भी कहते हैं, जी, तो आपका टैक्स 5%, 12,500 बना, तो 12,500 रुपए का आपका टैक्स है और आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो आपको 87A में 12,500 रुपए की टैक्स में छूट दे रखी है। इसलिए हम कहते हैं 5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, पर टैक्स तो लगता है, छूट मिलती है यार। ओके ओके ओके। So friends, now I come to the last part of my deliberation, that is Vivad se Vishwas scheme. हाँ संजय जी, let us complete first. Let us complete it within 10 minutes. Then we'll take the question. Okay. Okay, okay sir. हाँ, विवाद से विश्वास स्कीम, एज आई सेड, मैंने आपको कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी सर। कल अगर आपने मेरा ध्यान से लेक्चर सुना, मैंने कहा था कि फाइनेंस एक्ट हर साल पास होता है, कहा था मैंने आपसे। इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस एक्ट में फर्क होता है। जैसे बहुत सारे लॉ हमने फाइनेंस एक्ट के जरिए बना दिए। सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स एक्ट कोई चीज नहीं है, फाइनेंस एक्ट 1994 में ही सर्विस टैक्स के प्रोविजन है। इक्वलाइजेशन लेवी, देयर इज नो सेक्शन इन द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द इक्वलाइजेशन लेवी, प्लीज अंडरस्टैंड। और इसीलिए झगड़ा चल रहा है कि इक्वलाइजेशन लेवी का, क्योंकि इनकम टैक्स पे छूट है नहीं, इनकम टैक्स में प्रोविजन नहीं है, तो जो फॉरेनर्स है वो कहते हैं कि साहब हमको इसका रिबेट कैसे मिलेगा टीटीए में, क्योंकि डीटीए में इक्वलाइजेशन भी लिखा ही नहीं हुआ, वहां तो इनकम टैक्स लिखा होता है। तो विवाद से विश्वास जो स्कीम है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फाइनेंस एक्ट, ये फाइनेंस एक्ट के प्रोविजंस नहीं है इसमें, इट इज ए सेपरेट एक्ट इट्स इन सेल्फ, अपने आप में एक डिफरेंट एक्ट है। और विवाद से विश्वास एक्ट बना दिया इसको, जैसे मैंने बताया था, एंड इट गॉट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट 17 मार्च 2020। सबसे पहले जब आया था तो कहा था सरकार ने 31 मार्च तक आप जमा करवा दीजिए 100% टैक्स, हम आपसे कोई पेनल्टी, जैसे हमने पेनल्टी, इंटरेस्ट, प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं करेंगे, और 31 मार्च तक नहीं जमा करवाते हैं तो आप 30 जून तक 110% के साथ जमा करवा दीजिए। पर कोविड के चक्कर में डिले होता चला गया। अब फाइनल डेट्स ही हैं, सरकार ने कहा है कि 31 दिसंबर तक आप फॉर्म 1 फाइल कर सकते हैं, आप इन हो जाइए स्कीम में 31 दिसंबर तक। लेकिन कौन से केस, जो 31 जनवरी को या तो पेंडिंग थे या जिनकी ड्यू डेट थी फाइल करने की, ठीक है, और 31 मार्च तक आप पैसा जमा करवा दीजिए, 3 महीने का टाइम आपको दिया है विदाउट एनी एडिशनल चार्ज। 31 मार्च के बाद क्या करना है वो सरकार अभी चुप है, अभी सरकार ने बताया नहीं है, ओपन एंडेड डेट छोड़ रखी है, और एक्ट में लिख दिया है कि सरकार को मतलब डेट बढ़ा सकती है। रीजन क्या होता है कि अगर आपने एक्ट में कोई डेट दे दी है तो आपको हर बार पार्लियामेंट जाना पड़ेगा उसको चेंज करवाने के लिए। जैसे मैंने बताया था कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन द डेमोक्रेसी, दे हैव द पावर टू एनेक्ट द लॉ। तो इसलिए सरकार ने अब वो डेट्स को ओपन छोड़ दिया है, तो सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए या सिंपल नोटिफिकेशन के जरिए वो डेट्स बढ़ा देगी। तो 31 मार्च तक अभी कहा है कि आप जमा करवा दीजिए, 31 मार्च के बाद क्या होगा अभी नहीं बताया। एक एफएक्यू दिया सरकार ने बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑन 22 अप्रैल, सर्कुलर नंबर 19/9/2020। एवरी प्रोफेशनल्स
who are going into the scheme, please go through this circular. मैं उसके 4-5-10 सवाल मैंने इसमें ले लिए हैं अपने पीपीटी में, जो मेन सवाल है. You can go through this PPT also. Another important point, sir, इसमें केवल इनकम टैक्स के लिए ही ये स्कीम है. वेल्थ टैक्स हो, इक्वलाइजेशन लेवी हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अगर मैटर्स हैं, दे आर नॉट कवर्ड. प्लीज अंडरस्टैंड. अगर आपके वेंडिंग को वेल्थ टैक्स का मैटर था, इक्वलाइजेशन लेवी का मैटर है, दैट आर नॉट कवर्ड. ओनली इनकम टैक्स मैटर्स आर कवर्ड. ना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे. अगर ये सेक्शन, कुछ 9 सेक्शन है इस एक्ट में, विवाद से विश्वास एक्ट में. और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. व्हाट इज डिस्प्यूटेड इनकम, व्हाट इज डिस्प्यूटेड टैक्स, डिस्प्यूटेड पेनल्टी, डिस्प्यूटेड फी, टैक्स इन एरियर्स, एपेलेंट एंड डिक्लेरेंट कौन हो सकता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो आपने 20 लाख रुपए का रिटर्न फाइल किया और 30 लाख रुपए का एडिशन कर दिया, तो 30 लाख रुपए पे जो आपका एडिशन हुआ, जो उसमें टैक्स कैलकुलेट किया, दैट इज योर डिस्प्यूटेड टैक्स. ठीक है जी. और उसके रेलिवेंट जो इनकम है, दैट इज डिस्प्यूटेड इनकम. अगर उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगी तो दैट इज डिस्प्यूटेड पेनल्टी, चाहे तो लग गई हो, आइदर लेवीड और लेविएबल. जनरली क्या होता है कि जहां टैक्स मतलब डिमांड के केस चल रहे हैं, क्योंकि अभी वो फैसला नहीं होता, पेनल्टी इनिशिएट ही नहीं करता डिपार्टमेंट, तो पेनल्टी लेवीड और लेविएबल. और डिस्प्यूटेड फीस, जैसे मैंने जो 3 फीस आपको बताई है, या डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट अगर आपका है, तो आप उसमें जा सकते हैं. ठीक है जी, स्कीम में जा सकते हैं. ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स एरियर. आप कंफ्यूज होंगे. टैक्स एरियर का मतलब है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट चार्जेबल और चार्ज, और डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी. लेकिन जहां पर क्वांटम की आपकी मान लो डिमांड है आपकी टैक्स की, उसके साथ अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी है, तो जैसे मैंने बताया था कि आपको खाली टैक्स जमा करवाना है, तो डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट और जो पेनल्टी है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी. लेकिन अगर आपकी टैक्स की डिमांड नहीं है, या आपने टैक्स तो जमा करवा दिया, पेनल्टी के अगेंस्ट अपील में गए हुए खाली, आपको लगा नहीं है टैक्स का डिस्प्यूट नहीं है, पेनल्टी लगनी चाहिए, उस केस में 25% आपको खाली पेनल्टी का जमा करवाना है. डिस्प्यूटेड फीस, अगेन आई हैव गिवन द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑन द फी, डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, पेनल्टी. नाउ सेक्शन 2. इस एक्ट में अगर आपने डेफिनेशन, तो मैंने आपको समझा दी. सेक्शन 2 और सेक्शन 9, अगर ये 2 सेक्शन आपको समझ में आ गए, तो आपको पूरी स्कीम समझ में आ जाएगी. अब इसमें देखिए एपेलेंट कौन हो सकता है. देयर आर 2 टर्म्स, एपेलेंट एंड डिक्लेरेंट. एपेलेंट आप भी हो सकते हैं और डिपार्टमेंट भी हो सकता है. लेकिन डिक्लेरेंट कौन होगा? केवल एसएससी होगा. डिपार्टमेंट टैक्स जमा नहीं करवाएगा ना. एपेलेंट कैन बी डिपार्टमेंट ऑल्सो, टैक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो, और यू कैन ऑल्सो, बोथ. तो 6 केस कवर किए, 6 तरह के एपेलेंट हैं, 6 सिचुएशन बताई है सरकार ने, और उसमें डिस्प्यूटेड टैक्स कितना होगा मैंने उसको कंपाइल कर दिया आपस में, सेक्शन 2 और 3 को, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. देखिए, अगर किसी पर्सन के केस में, मैंने आपको एक और बात बताई थी कल, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड एसएससी. हमने बताया था ना, पर्सन, 7 काइंड्स ऑफ पर्सन. एवरी एसएससी इज ए पर्सन, बट एवरी पर्सन इज नॉट एन एसएससी. तो इन केस ऑफ ए पर्सन, जिसके केस में कोई अपील, कोई रिट पिटीशन, कोई स्पेशली पिटीशन, स्पेशली पिटीशन का होती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, इज फाइल्ड बाय द आइदर बाय द हिम, या तो एसएससी ने, पर्सन ने फाइल कर रखी है, या बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी, और बाय बोथ. मान लो कई बार क्या होता है कि दोनों क्रॉस कर देते हैं,
मैं भी अपील में चला गया, सीआईटी अपील ऑर्डर दिया, मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं भी चला गया और डिपार्टमेंट चला गया। किसी अपीलेंट फॉर्म के सामने पेंडिंग है। अपीलेंट फॉर्म कौन से? 4, सीआईटी अपील, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो डिस्प्यूटेड टैक्स कितना होगा? अगर आप जा रहे हैं विवाद से विश्वास में, तो ये सरकार मान के चलती है कि साहब आप जितना टैक्स बनता, अगर आप केस हार जाते कि आपके फेवर डिसीजन नहीं आएगा, इसका मतलब जो असेसमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है उसको आप मान लेते हैं, तो आपने हमारी बात मान ली और हमने आपकी बात मान ली। मतलब मानी तो हमारी कुछ नहीं, हमारी ये मान ली कि हमको इंटरेस्ट नहीं लगा रहे, पेनल्टी नहीं लगा रहे, प्रोसिक्यूशन नहीं लगा रहे। तो डिस्प्यूटेड टैक्स मींस इफ द अपील गोज अगेंस्ट हिम, चाहे आप स्ट्रांग हैं कितनी अपने पॉइंट्स में, तो ये मान के चलेंगे कि साहब जो ऑर्डर हमें लिखा हुआ है वो हम मान लेंगे, उतना टैक्स आप देने को तैयार हैं। उस केस में जहां पे अपील में आप गए हो या डिपार्टमेंट गया हो या दोनों गए हो, पहला केस। दूसरा केस, आपका ऑर्डर एओ ने पास कर दिया, सीआईटी अपील ने पास कर दिया, आईटीटी ने पास कर दिया, हाई कोर्ट ने पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट नहीं है इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो लॉ ऑफ द लैंड है ना भाई। हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कहां जाओगे आप? तो एओ ने पास किया, सीआईटी अपील ने पास किया, आईटीटी ने पास कर दिया, हाई कोर्ट ने पास कर दिया, और आपका टाइम लिमिट अभी बचा हुआ था अपील फाइल करने का, तो आप उसको तो मना ही नहीं कर सकते थे। और आपको पता होगा सीआईटी अपील के पास जाने का टाइम कितना होता है? 30 डेज। आईटीएटी का टाइम होता है 60 डेज, हाई कोर्ट का होता है 120 डेज, और सुप्रीम कोर्ट का होता है 90 डेज। तो 31 जनवरी के अगर इन पीरियड्स में, यानी सीआईटी अपील है तो 1 जनवरी के बाद ऑर्डर आया हो, आईटीएटी में 60 दिन में जा सकते हैं, सीआईटी अपील का ऑर्डर है तो 1 दिसंबर के बाद आया हो, तो आपका राइट था अपील में जाने का, और आप अपील में नहीं गए। सॉरी, आप अपील में अभी फाइल नहीं कर पाए हैं, आप विवाद से विश्वास जा सकते हैं। लेकिन टैक्स कितना होगा कि जो भी उस ऑर्डर का, मतलब आपको सीआईटी अपील है पार्टली रिलीफ दे दिया था, या आईटीएटी ने आपकी जो आपने 20 लाख की इनकम थी 30 लाख हो गई थी, 10 लाख का रिलीफ दे दिया था आपको, मान लो आप अपील में नहीं गए, तो वो मान लेंगे ठीक है जी, हम 40 लाख रुपए की इनकम मान के आप टैक्स दे दो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आफ्टर गिविंग द इफेक्ट व्हाट द ऑर्डर हैज बीन पास्ड, उसको एट द फेस वैल्यू लेके आप स्कीम में चले जाओ। आपने अभी अपील फाइल नहीं की है, आप डिस्प्यूट में गए नहीं है, लेकिन आपके पास ड्यू डेट थी, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है जी, जो आपके ऑर्डर में फेवर आ गया तो आपके अगेंस्ट आ गया तो, लेकिन जो फेवर आपके आ गया उसका इफेक्ट लो और आप टैक्स जमा करो। तीसरा केस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डीआरपी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है ना 144 में। आपने डीआरपी में आपका केस गया हुआ, ट्रांसफर प्राइसिंग के जो मैटर्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के, वो जाते हैं, और डीआरपी ने कोई इंस्ट्रक्शन इशू नहीं की है। क्योंकि होता क्या है, जब हम डीआरपी में जाते हैं तो डीआरपी एक जो एओ प्रपोज करता है एडिशंस, तो डीआरपी पास चले गए, डीआरपी इंस्ट्रक्शन इशू करता है, तो उसके साथ में फिर एओ ऑर्डर पास करता है। तो अगर डीआरपी ने कोई इंस्ट्रक्शन इशू नहीं की है अभी तक, तो फिर जो एओ का ऑर्डर है वही आपका मान लिया जाएगा कि जो डीआरपी जो एओ ने ऑर्डर भेजा था उसी को कंफर्म करता। ऐसा सिचुएशन होती तो कह रहा हूं एओ के ऑर्डर पे आप टैक्स दे दीजिए। फोर्थ सिचुएशन, जहां डीआरपी ने इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो क्या होता कि डीआरपी के इंस्ट्रक्शन के बेस पे जो ऑर्डर पास करता है एओ, उसको मान लेंगे, आप टैक्स जमा करवा दीजिए। फिफ्थ सिचुएशन, आप रिवीजन में चले गए 264 में। देखिए 2 सेक्शन है, 263, 264। 263 में सीआईटी के पास पावर होती है कि असेसिंग ऑफिसर ने मान लो कोई ऑर्डर पास कर दिया और सीआईटी को लगता है कि दिस ऑर्डर इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, तो वो उसको रीओपन कर देते हैं, आप सबको पता होगा। 264 एक है जहां पे असेसी जा सकता है, पर असेसी अगर 264 में चला जाएगा तो उसको सीआईटी में वो फिर अपील में नहीं जा सकता, तो वो जाएंगे क्यों आदमी?
केवल वही केस जाते हैं सीआईटी के पास में 264 में जहां पर अपील का टाइम निकल चुका है या कंडोनेशन नहीं हो रही है आपकी अपील। तो सीआईटी अपील में अगर आपने सीआईटी के पास रेक्टिफिकेशन के लिए आप चले गए हैं, आपका 1 साल का टाइम होता है 264 में। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें ड्यू डेट का मामला नहीं है कि साहब मैं चला जाता तो, ना ना ना, केवल वही केस है जो फाइल हो चुके हैं 31 जनवरी को। इसमें केवल वही केस आएंगे जो फाइल हो चुके हैं। अगर आपके पास ड्यू डेट थी भी 264 जाने की, यू आर नॉट एलिजिबल, यू कैन नॉट से कि मैं चला जाता, क्योंकि उसमें 1 साल का टाइम है। और टैक्स कितना बनेगा कि साहब आपका जो एप्लीकेशन है, रिवीजन एप्लीकेशन हम लगाई है, वो आपके अगेंस्ट जाती। सिंपल सा, डिपार्टमेंट जो ने कहा वो ठीक है, आपने मान लिया, तो आप इसमें चले जाइए। लास्ट, अगर एओ ने ऑर्डर पास कर दिया लेकिन अपील अभी फाइल नहीं हुई है, वही ड्यू डेट वाली, तो जो आपका इनकम टैक्स बन रहा है इंक्लूडिंग सेस एंड सरचार्ज आप जमा करवा दीजिए, इंटरेस्ट आपको नहीं देना। अदर सिचुएशन, आपको पता होगा कि सीआईटी अपील को एनहांसमेंट की पावर है सेक्शन 251 में, हम 246 ए में अपील करते हैं। तो वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द असेसमेंट अगर उसको लगता है अपील में, तो सीआईटी अपील एनहांस भी कर सकता है कि नहीं साहब ये एडिशन 30 लाख नहीं होनी चाहिए तुम्हारे यहाँ मिस्टर गर्ग, ये तो झगड़े वाला काम है, तो 75 लाख होनी चाहिए। मतलब 20 लाख की मैं रिटर्न फाइल की, एओ ने उसको 50 लाख कर दिया, उसने 25 लाख की एनहांसमेंट का और ऑर्डर दे दिया मेरे को, और मैं जाना चाहता हूं, तो ये मान के चलिए फिर आप 75 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा आपको। अगर एनहांसमेंट ऑर्डर दे दिया है 31 जनवरी से पहले, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी, मान लीजिए उसने मार्च में दिया, मार्च 20 में एनहांसमेंट ऑर्डर, एनहांसमेंट का है और अभी पेंडिंग चल रहा है, तो फिर आपको केवल अगर 31 जनवरी तक उसने एनहांसमेंट का नोटिस दिया है 251 में, तभी आप पेनलाइज होंगे, अदरवाइज फिर आप नहीं हो सकते। अगर मान लो फरवरी में दिया उसने, तो नहीं, 31 जनवरी को एनहांसमेंट का ऑर्डर दे चुका था, नोटिस दे चुका था, और आप विवाद विषय में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि जो एनहांसमेंट का नोटिस दिया, यानी 75 लाख रुपए आपकी कंफर्म एडिशन है और आप टैक्स भर दीजिए। मैंने बताया 31 मार्च तक 100% तक, उसके बाद 110% तक। हाँ, सर्च के केस में अगर आपके यहाँ सर्च हुई है, मान लो 6 साल की ब्लॉक असेसमेंट होती है सर्च में, आपकी असेसमेंट हो चुकी है, आप जा सकते हैं। लेकिन किस साल में जा सकते हैं? उसी साल में जा सकते हैं जिसमें आपकी जो असेसमेंट है वो 5 करोड़ रुपए तक है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आप नहीं जा सकते, 5 करोड़ तक है तो आप जा सकते हैं। हाँ, आप ईयर वाइज जा सकते हैं। मान लीजिए आपके 2 साल में 5 करोड़ से एडिशन कम थी, उसमें चले जाइए, जिसमें 5 करोड़ ज्यादा उसमें मत जाइए, उसमें जा ही नहीं सकते मतलब। और पर्सन वाइज जा सकते हैं, मान लो आपकी अलग असेसमेंट हुई, आपकी वाइफ की अलग असेसमेंट हुई, आपके बच्चों की अलग हुई, तो जो भी 5 करोड़ से कम है उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन उसमें आपको जमा कितना करवाना है? जैसे उसमें 100% था, इसमें 125%, 25% एक्स्ट्रा। उसमें 110 जमा करवाना है ड्यू डेट के बाद, तो इसमें 135 जमा करना। मैंने बताया था कि विवाद से विश्वास में कुछ केस ऐसे हैं जहां पर आपको 50% डिस्प्यूटेड टैक्स का जमा करवाना है। वो भी सरकार ने सारे हथियार अपने पास रखे हैं। देखो, हमसे तो कह दिया कि हम मान लेंगे, आप हार जाते, आप हार जाते। अगर आप जीते हुए केस में हैं, आप मान लो जीत चुके हैं एक अपीलेट अथॉरिटी, मान लो आप सीआईटी अपील में जीत चुके हैं और आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंट चला गया आईटीएटी में, आप तो जीते हुए हैं। अगर आपको लगता है कि मैं जीता हुआ हूं, मैं आगे भी जीत जाऊंगा, तो आप जाएंगे नहीं। पर आपको लगता है नहीं यार, मुझे डिस्प्यूट नहीं रखना, हो सकता है कल मैं हार जाऊं, या हाई कोर्ट में मैं हार जाऊं, या कोई और ऑर्डर आ गया इन द मीन टाइम, और आप जाना चाहते हैं, तो 50% आप जमा करवा दीजिए। 50% आप जमा कीजिए। दूसरा केस है, आपकी अपील सीआईटी अपील के पास या डीआरपी के पास पेंडिंग है, और सेम इशू के ऊपर आपके पास में आईटीएटी का या हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, और इट हैज नॉट बीन रिवर्स बाय सुप्रीम कोर्ट, तो आप उस केस में भी 50% आप जमा करवा दीजिए। तीसरे केस में आपने आईटीएटी में अपील गए हुए हैं किसी मैटर्स के ऊपर, मान लो आपका 17-18 असेसमेंट ईयर का अपील में केस चल रहा है, और 16-17 में सेम मैटर्स पे आपका हाई कोर्ट में आपके फेवर का डिसीजन आया हुआ था, 50% जमा कर, लेकिन इट शुड नॉट बी रिवर्स बाई
एनी कोर्ट, अगर किसी कोर्ट ने उस मैटर को रिवर्स कर दिया तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इशू, मतलब पर मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा ये जो एकेडमिक पर्पज के लिए अगर आपका लॉस की रिटर्न थी और आपका लॉस कम हो सर गया, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर हम अब क्वेश्चंस ले लें और इस टॉपिक को अगली बार कंटिन्यू कर लेंगे। बस 2 अगले मिनट में खत्म कर रहा हूँ सर, मैं 2 मिनट खत्म कर रहा हूँ, बस 2 ये अच्छा लास्ट है बस। तो अच्छा उसमें आपको सरकार ने एक ऑप्शन दी है कि आप या तो रिड्यूस्ड क्रेडिट के साथ आगे बढ़ जाइए, या आप क्या कीजिए, आप टैक्स जमा करवा दीजिए और आपको उसका बेनिफिट आपको अगले साल हम दे देंगे, कैरी फॉरवर्ड लॉस का भी दे देंगे और डेप्रिसिएशन का भी देंगे, मैट का भी। स्कीम 9 किन केसों में ये नहीं लगेगा? अगर आपका सर्च केस है और टैक्स की जो डिस्प्यूटेड टैक्स का जो अमाउंट है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, डिस्प्यूटेड टैक्स का अमाउंट, इनकम का नहीं। अगर आपकी एडिशन टैक्स जो बन रहा है वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो सर्च केस में आप इलिजिबल नहीं है, 5 करोड़ से कम वाले केस में आप इलिजिबल है। सेकंड, आपका प्रोसिक्यूशन जहां लॉन्च हो चुका है, इनिशिएट नहीं, जहां लॉन्च कर दिया है, उस केस भी एप्लीकेबल नहीं है। और जहां पर ब्लैक मनी एक्ट लगता है, यानी अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है आउटसाइड इंडिया, नहीं है। कोपे फोसा में अगर आपका डिटेंशन हो गया है, नहीं एप्लीकेबल होंगे। और बेनामी या पीएमएलए एक्ट में आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो गया है, यू विल नॉट बी इलिजिबल। उसके बाद मैंने पीपीटी आपके पास होगी, मैंने कुछ एफएक्यू जो सिलेक्टेड एफएक्यू है 40 या 50 थे, उसमें से मैंने 10-12 जो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, आप उनको पढ़ लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप और माई मोबाइल नंबर इज देयर आई थिंक, और आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू, दिस इज द एंड ऑफ माई डेलिब्रेशन, नाउ वी कैन टेक अप द क्वेश्चंस। प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। हाँ संजय जी, आपका कुछ क्वेश्चन था शायद। हाँ जी हाँ, सर। संजय जी आप बताइए प्लीज। Actually, sir, that is not a question. Only want to confirm about the 234 penalty. 234A, 234B, 234C. So, in case of all these penalty, first of all, we have to imply the 234C. I यस, think, sir. Yeah. Then after 234B, बिल्कुल ठीक then है, 234A. बहुत अच्छी बात। Regarding 234A, sir, suppose that we have submitted all the 100% tax, but not submitted a return timely. For example, I am the individual SSC and not submitted the return up to the आपको 31st. 234 का ब्याज नहीं लगेगा, टैक्स पेबल जितना होगा अगर आपने ड्यू डेट से पहले जमा करवा दिया Yes. तो 140A सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने जमा करवा दिया, आपको नहीं लगेगा सर। 234A के केस में सर, सपोज दैट हमने 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट है रिटर्न भरने की, हाँ जी सर, आपने 31 जुलाई तक सारा टैक्स जमा करवा दिया, हाँ आपने रिटर्न फाइल की मान लो 30 सितंबर को, हाँ, ये बोला आपका, तो आपको Yes. 2 महीने के बाद नहीं लगेगा। okay. One more thing, sir, related to the advance payment of tax. Previously, this one is categorized into the two part of one is the 4 the installment, second one is the 3 installment related to the पहले क्या था, पहले कंपनी के लिए 4 इंस्टॉलमेंट थी, अदर देन कंपनी से 3 इंस्टॉलमेंट थी, अब सबके लिए 4 कर दी है। अब सबके लिए 4 है ना सर। 15 जून 15%, 15 सितंबर 45%, 15 दिसंबर 75%, 15 मार्च 100%, और 100% का टैक्स है, मतलब आपको 90% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी एज एडवांस टैक्स जमा करना। ओके सर, थैंक यू। आई थिंक टुडे इट वाज मोर इंटरेक्टिव, नहीं आज सबको? एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन? संजीव जी आप सुन रहे हैं? संजीव गर्ग। Yes sir, it was very good sir today. So I think sir it has come to an end and I must. रंजन बंसल जी आप कहाँ हैं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी अजय जी, कोई क्वेश्चन?
संजीव अनम्यूट कीजिए अजय जी, अनम्यूट कीजिए पहले। सॉरी। हाँ और जी। मान लीजिए कि जैसे मेरे केस में मेरे टीडीएस ही बहुत ज्यादा डिडक्ट हो जाते हैं, तो फिर मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला कि अपने को एडवांस टैक्स नहीं देने की करना, दरकार नहीं। नहीं करना सर, एडवांस टैक्स वही है, नेट लायबिलिटी आफ्टर ओके ऑल दैट। हाँ ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी क्लास में बच्चे सवाल कम पूछते हैं। Sir, actually, your class will. I think that your class are going on in a very lucid manner, and all things we understand properly. That's why. या तो सबको समझ में देखो, दो ही बातें होती हैं। आप तो सौरभ जी प्रोफेसर रहे हैं, मैं तो प्रोफेसर नहीं हूँ। या तो सबको समझ में आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। क्यों सर? बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आता है सर। सर बहुत अच्छा रहा है सेशन। कंटेंट तो सर इतना है ही आपके पास, इतना इतना आप न्यूज चैनल पे आते हैं, आपको देख के भी बहुत एनर्जी आ रही है। इतना अच्छा आपने नेहरू जैकेट पहना हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है। मैं भी अगली बार ये जैकेट पहन के क्लास अटेंड करूंगा। हाँ जी परविंदर जी, आपको सवाल नहीं कोई? परविंदर मैडम, अब व्हाट्सएप पे तो आपके सवाल आते हैं मेरे पास, यहाँ नहीं पूछ रहे आप। सर अभी बहुत ही अच्छा सेशन था, सब कुछ समझ में आ गया, इसीलिए कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। मेरी मेरी बीवी को भी कॉम्प्लीमेंट दे देना कि देखो मुझे सब कुछ समझ में आता है, इनकी बात। उसको समझ में नहीं आती, बाकी सबको आती है समझ में। सब बीवियों का वैसे समझ में नहीं आता है। नहीं आता। हमें बीवी एज अ बीवी हमें भी समझ में नहीं आता है। ठीक है सर, तो आई थिंक वी आर मीटिंग ऑन नेक्स्ट सैटरडे एंड द टॉपिक इज you have the detail. Yes sir, capital gain is the A to Z of capital gain taxation. Very important topic I will discuss. मैं आपको बहुत सारी नई बातें बताऊंगा, और मेरी कोशिश रहती है कि बातों को ऐसे बताया जाए कि एक लेमैन भी समझ सके उस बात को, है ना। बहुत टेक्निकल बात को भी बड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तो कैपिटल गेन में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप आए कैपिटल गेन के लिए, मैं आपको पीपीटी डाल दूंगा 2 दिन पहले 3 दिन पहले, आप थोड़ा पढ़ के आए उसको, तो आपको और अच्छा लगेगा। और विशेष कर व्हाट इज ए कैपिटल एसेट 2 क्लॉज 14, व्हाट इज ट्रांसफर, है ना, व्हाट इज कंपल्सरी एक्विजिशन एंड व्हाट आर द डिडक्शन 54, 54F, ये जितनी भी डिडक्शन आप पढ़ के आइए। 45 मैं समझाऊंगा आपको कि क्या होता है एफ एंड वो, क्या होता है शेयर्स, क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स पे कैपिटल कैसे निकालते हैं, लिस्टेड में क्या होता है। तो आप पढ़ के आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आई थिंक इट इज द एंड ऑफ द डे related to the deemed income. And sir, Sunday comp करेंगे TDS and TCS provision, recent development और taxation of startups, various benefits of startup India on 13th of December. तो Yes. ये मैं 1 सेकेंड में मैं ये प्रेजेंट ही कर देता हूँ क्या टॉपिक है। सो दिस इज, अब देख पा रहे होंगे आप, तो सैटरडे का ये हमारा शेड्यूल है अगले वीक का। राइट। सो थैंक यू सर फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन। वी थैंक यू फॉर सच एनर्जी, सच patiently taking all the queries. Thank you. थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार करो जी। नमस्ते जी, नमस्ते। थैंक यू। पूजा करके फिर प्रसाद लेके जाते हैं। तो नहीं है जलेबी। The lecture is over. Now you can exit.